السلام علیکم، آج 5 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں سعدیہ فوز. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ملتان سے خبر شامل کریں گے. ملتان کی کاٹن فیکٹری میں لگی آگ پر چوتھے روز قابو پا لیا گیا ہے. آتش گردی کے کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. فیکٹری کی قریب 13 مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے. ریسکیو آپریشن میں ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ اور پاک فوج نے حصہ لیا. متاثرین کی صورتحال کیا ہے یہ بتا رہے ہیں آج دوسرے نمائندے ناصر ظہیر. جی ناصر. بالکل، ملتان کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ پر آج چوتھے روز جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. 4 روز تک لگنے والی آگ کے اندر ریسکیو کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ اور پاک آرمی نے اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا، جس کے بعد جو ہے یہاں پر آگ کی جو شدت تھی اس کے اندر اس کو قابو پا لیا گیا. آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری کے اندر جو کروڑوں روپے مالیت کی کاٹن تھی، کپاس تھی، وہ جل کر خاکستر ہو گئی. اور اس کے ساتھ جو ملکہ گھر تھے، 13 مکانات بتائے جا رہے ہیں کہ 13 مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور یہاں پر رہنے والے جو مکین ہیں، متاثرین ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو آگ لگی تھی اس کی وجہ سے جو مکانات منہدم ہوئے ہیں، اس حوالے سے اب آپ کی زندگی جو ہے کس طرح متاثر ہوئی ہے؟ جو آگ لگی ہے نا، یہ اس نے ہمارا جینا بالکل محال کر دیا. اور جتنے یہاں پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں بالکل سب یعنی کہ دیہڑی دار طبقہ ہیں. اور ان کی روٹی جو پکتی ہے، صبح کو جاتے ہیں کام پہ، شام کو واپس آتے ہیں. اور یہ مکان گر گئے ہیں. اب ان کو جلد از جلد ان کا محاصرہ دیا جائے. آپ بتائیے گا کہ اس آگ کی وجہ سے جو مکانات متاثر ہیں، اب آپ کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ سر، یہ 4 دن سے جو ہے نا، جتنے بھی جو گھر متاثر ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بچے بھی اور ان کے مال مویشی بھی جتنے بھی ہیں، پانی سے بھی، گیس سے بھی، بجلی سے محروم ہیں. تو اب ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو فیکٹری والے ہیں یا حکومت ہے، یہ سب مل کر ان کا خیال کیا جائے. جی بالکل. آپ یہاں کے کونسلر بھی ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہاں پر جو انتظامیہ کی جانب سے جو ضلع انتظامیہ اور عوامی نمائندے جو یہاں پر آئے، ان کی جانب سے کسی قسم کی نقصان کے ازالے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے؟ جی بھائی جان، وہ ایسے ہے کہ جب آگ لگی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ ADCR بھی تھے، پٹواری، تحصیلدار، کانوگو، مکمل عملہ ان کے ساتھ تھا. میاں جلال الدین رومی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ جی اس علاقے کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ فائر ختم ہونے کے بعد جب یہ ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے ادارے حاضر کی ذمہ داری اور وہ پورا کر کے دیں گے. ریشتےداراں نے بھیجتے ہیں، سارے لوگوں نے بھیجتے ہیں. بڑا خطرہ سی ہے اگ دا، اس تو نہ کی کوئی نہ کیا ہے. باقی میاں صاحب خود ہے، آپ ساڈا کونسلر صاحب ہے، تو ملک عاطف آیا. سامان ہے گھروں کا وہ بھی یہاں پر موجود ہے. نہ صرف یہاں پر بلکہ مختلف مقامات پر جو کھلے مقامات ہیں، وہ گھروں سے سامان فوری طور پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکال کے جو ہے اپنا سامان اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے، رشتہ داروں کے گھر جو ہے ان کو بھیج دیا ہے. اس واقعے کے اندر کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن جو یہاں کی آبادی ہے، جو فیکٹری سے ملکہ گھر تھے، 13 مکانات بتائے جا رہے ہیں جو شدید متاثر ہوئے ہیں. اور ان کے اندر رہنے والے ان گھروں کے جو مالکان ہیں اور اس گھر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے نقصانات کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے. یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی ان کو یقین دہانی کروائی تو گئی ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا، ان کے گھروں کو اثر نو تعمیر کر کے دیا جائے گا اور جو نقصانات ہیں وہ ان کے پورے کیے جائیں گے. اکاڑا کے قصبہ گوگیرا کی آبادی طارق آباد میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی تھی، جس سے جاں بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. مزید بتا رہے ہیں شہباز شاہین. بالکل، اکاڑا کے قصبہ گوگیرا کی آبادی طارق آباد میں گزشتہ شب طوفانی آندھی اور بارش کے نتیجہ میں مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والے 8 افراد، جن میں سے خواتین بچے شامل تھے، ان کی نماز جنازہ طارق آباد میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی. جب 8 اجتماعی جنازے اٹھائے گئے تو فضا سوگوار ہو گئی. ہر آنکھ اشک بار تھی. خواتین اور مرد دھاڑے مار مار کر رو دیے. خواتین اور مرد جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے سکتہ میں آ گئے. کاروباری مراکز سوگ میں مکمل طور پر بند رہے. اس وقت میرے ساتھ سوگواران موجود ہیں. ہونے والے المناک حادثہ کے متعلقہ کیا بتاتے ہیں؟ تو بھی ان کی مدد بھی کی جائے. یہ غریب آدمی ہیں، ان کے گھر بھی اجڑ گئے ہیں، ان کے خاندان پورا ہی اجڑ گیا ہے. تو برائے مہربانی ہماری گزارش ہے تو اللہ کے حکم سے آپ ان کا خیال کریں. 8 افراد چھت کے نیچے آ کر فوت ہو گئے ہیں. حکومت والوں نے ہماری کوئی امداد نہیں کی. یہ دادی ہے میری، میں بچوں کی دادی ہوں.
इन्हां की कोई वजीर आला, कोई हुकूमत, कोई किसी तरफ दी कोई इमदाद नहीं कर रहा। इन्हां दे जेड़े बच्चे 3 जख्मी ने उन्हां दी भी कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। हस्पतालों वाले भी कोई उन्हां दा इलाज कोई ख्याल नहीं कर रहे। सब बच्चे घर आ गए ने, जेड़े जख्मी 3 बच्चे ने ते जेड़ियां 8 लाशां चला गईयां ने, उन्हां दे घर वालियां दा किसे कोई उन्हां नूं इमदाद नहीं दित्ती, कुछ भी नहीं किया। गरीब हैं, मजदूर हैं। हादसा में जान बहक होने वाले 8 अफराद के वर्सा का कहना है कि इनका हंसता बसता खानदान खत्म हो गया है। जख्मी होने वाले 4 अफराद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े पर अफसोस का इजहार तो कर दिया, मगर गरीब घराने के लिए कोई इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया। वर्सा ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से मुतालबा किया है कि माली इमदाद का ऐलान किया जाए। नमाज जनाजा के बाद जाम बहक होने वाले अफराद को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोयटा के नवाही इलाके सरियाब मिल कॉलोनी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सरियाब रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। गर्मी के सताए मुजाहिरीन का कहना था कि 16 घंटे की लोड शेडिंग से मुश्किलात का सामना है। बिजली की अदम फरामी के बायस पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग के खात्मे की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। लाड़काना में एक जानिब शदीद गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग के अजाब ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर रखे हैं। मजीद बता रहे हैं सलामत अबड़ो। लाड़काना शहर और गुर्दनवा चंद्रो शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त गर्मी का दर्जा 40 सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासब 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी और हफ्स के बाद शहरी जो पार्कों और दरख्तों के साए के तले बैठकर दिन गुजारने पर मजबूर है, जबकि शहरी खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश में मसरूफ अमल है। ठंडी अशिया समेत ठंडे मशरूबात के इजाफे में शहरियों ने इजाफा कर दिया है। जबकि बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ मामूलात जिंदगी समेत कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही हैं, बल्कि घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और कई इलाकों में बिजली न होने के बाद पानी की किल्लत पाई जा रही है शहरियों को, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरान ये को कम किया जाए। जलालपुर पीरवाला में बिजली के पोल्स पर लगी बोसीदा तारें शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई हैं। हल्की सी हवा चलने से तारें स्पार्क होने से कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने लगी है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अयास ताहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ शहर भर में बिजली के पोल्स पर लगी बिजली की तारें बोसीदा होने के बाद थोड़ी सी हवा चलने पर जगह जगह से स्पार्क हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली की बहाली मुतासर हो जाती है। हालिया आई आंधियों के बाद शहर भर में जगह जगह तारें स्पार्क होने से शहर को कई घंटे बिजली की अदम फराहमी का सामना करना पड़ा है। जबकि बिजली की तारों के स्पार्क होने से किसी भी नाखुशगवार वाकया रूनमा होने के खदशात भी लाहक हैं। शहरियों ने कई बार मैपको हुकाम को दरखास्तें दी हैं, लेकिन मैपको हुकाम की जानिब से अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि मैपको की जानिब से हमें बिजली के भारी बिल तो भेज दिए जाते हैं, जो बर वक्त अदा न करें तो हमारे मीटर काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर शहरियों की सहूलत की बात करें तो मैपको हुकाम लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। जी मैं आपको इसके साथ ये भी बताते चलूं कि बोसीदा तारों के साथ साथ शहर भर में कम ऊंचाई पर लगे बिजली के मीटर और बिजली की तारों के जंजाल भी सरेआम मौत को दावत दे रहे हैं। रायगढ़ में जिला इंतजामिया की नाअहली से मॉडल बाजार में सस्ता सहूलत बाजार फाल न हो सका। चीनी, करियाना समेत दीगर स्टॉल न लगने से शहरी मायूस हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानब से रायगढ़ मॉडल बाजार में सस्ता सहूलत बाजार कायम हुए तकरीबन 4 रोज गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया, ना ही यहाँ पे कोई छांव का इंतजाम किया गया है, कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और इसी तरह दीगर इंतजाम जो है वो भी नजर नहीं आ रहे। कागजात में कायम किए गए इस सस्ता सहूलत बाजार के समरात आवाम तक नहीं पहुँच पाए जा रहे। इस हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि इस सस्ता सहूलत बाजार में सिर्फ और सिर्फ आटे के चंद थैले जो है वो ट्रक में लाद कर लाए जा रहे हैं। यहाँ पे चीनी का स्टॉल जो लगाया जाता था वो भी नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सस्ता सहूलत बाजार की आड़ में जिले इंतजामिया ने एक लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सस्ता सहूलत बाजार उसी मॉडल बाजार में कायम करने की वजह से कोई आवाम को सहूलत नहीं मिल रही, ना ही पूरी कोई आइटमें यहाँ पे दी जा रही हैं। जेहलम में कोरोना वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मनगढ़ंत करार देते हुए वैक्सीन को कोरोना का वाहिद इलाज करार दिया है।
झेलम में महकमा सेहत के जेर तमाम कोरोना वैक्सीनेशन की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, वकला, सरकारी, समाजी, कारोबारी, मजहबी शख्सियात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जिला कौंसिल हॉल में मुनक्दा सेमिनार से खिताब करते हुए सीओ हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने बताया, अब तक जिला झेलम में 70,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनके ख्याल, उनके खदशात आवाम के ज़हन से दूर किए जाएं कि ये सब बेबुनियाद अफवाहें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हर एक से मेरी गुजारिश होगी कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि यही एक वाहिद जरिया है इससे बचाव का। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, कोरोना एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना चाहिए और इसके तदारक के लिए वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और इसके बगैर हम हर्ड इम्यूनिटी का दर्जा नहीं पा सकते, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी। DHO मियां मजरियात ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, सरकारी सतह पर फराम की जाने वाली तमाम वैक्सीन मुकम्मल, महफूज और मुअस्सर हैं। वैक्सीन की फरामी और तरसील आलमी इदारा सेहत और कौमी माहिरीन के तस्दीक शुदा असूलों के मुताबिक की जाती है। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, झेलम। जिला सांगड़ में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अब तक 25,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खेली से। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और हॉस्पिटल के सांगड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं। अगर जिला सांगड़ में वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए तो अब तक 55,000 अफराद ने 1166 पर मैसेज किया है, जहां पर 25,000 से ज्यादा जिसमें तमाम उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन की गई है। इस सिलसिले में जब मेरी महकमा सेहत से बात हुई तो महकमा सेहत का यह कहना है कि कोविड-19 के सिलसिले में जिला भर में 9 जो कि वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर तमाम अफराद के उम्रों को जो कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी व सारी है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को एक आगाही मैसेज दिया है कि जितने भी जो अफराद हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से 1166 पर मैसेज करें और वैक्सीन करवाएं, ताकि ये जो मुहलिक वबा है कोरोना उससे बचा जा सके। याद रहे कि इस वक्त सांगड़ में वैक्सीन भी जारी है। जैकबाबाद में चर्च इंतजामिया ने ख्वाजा सराओं को ईद मिलन पार्टी दी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ख्वाजा सराओं ने शिरकत की। जैकबाबाद में विक्टर न्यूटन मेमोरियल चर्च के तावन से ख्वाजा सराओं के मान में ईद मिलन पार्टी की तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेजबान ब्रोनर बी न्यूटन, टोनी और दीगर मेहमानों का कहना था कि ख्वाजा सराओं को मुआशरे में इज्जत दिलाने के लिए कोशिश है। तकरीब का मतलब ये है कि ये हमारे ये जो ख्वाजा सरा भाई हैं, बहनें हैं, ये हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हम इनको अपने खानदान से या अपने मुआशरे से या अपने सोसाइटी से इनको अलग नहीं कर सकते। तमाम वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अपने उन बच्चों को भी प्यार करें जिनको वो ख्वाजा सरा समझते हैं। पाकिस्तान में बसने वाली सारी कौमें जब तक आपस में मिलकर नहीं रहेंगी, एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और ख्वाजा सरा तो वो लोग हैं जो कि रद्द किए हुए लोग हैं, तो उनके साथ ईद की खुशियां मनाना बहुत अहम काम है। तारीख ये बताती है कि बादशाह बड़े बड़े ओहदों पर ख्वाजा सराओं को रखते थे। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था वो भी ख्वाजा सरा था। हमारे मुल्क में क्यों इनको दत्कारा जाता है? तकरीब के शुरका का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद ख्वाजा सराओं को ईद की खुशियों में शामिल करना है, ताकि इनको कभी मुआशरे में कोई कमी महसूस न हो। तकरीब में ख्वाजा सराओं को ईद के तोहफे भी पेश किए गए। दीरबाला की सयाहती मकाम अशीरी दरा और गडरा बेला की खूबसूरती का कोई सानी नहीं। दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सयाहों की आमद जारी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर दीर उशेरे दरा के दूर इफ्तादा इलाका गरला बेला में। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, ताहम सियाहों की नजरों से जो है वो उजल है। इसकी बुनियादी वजह जो है यहाँ की जो सड़क है वो इंतहाई खस्ता हाल है। लोग पैदल सफर करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में सियाह जो है वो आकर यहाँ की जो रंगीनियाँ है और जो खुशगवार मौसम है उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इससे आगे जो खूबसूरत झील है, सेदगई झील के नाम से वो मशहूर है। इसके साथ यहाँ जो सफर ग्राउंड है वो भी काफी मशहूर है और हर साल नौजवान जाकर वहाँ के जो खूबसूरत लम्हात है और जो खूबसूरत मनाजिर है उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी बताता चलो कि जो मुकामी लोग हैं यहाँ पर जो मकीन है और जो सियाह है, इन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया कि अगर ये जगह टूरिज्म में शामिल किया जाए और यहाँ पर सड़क की बंदोबस्त की जाए तो यकीनन ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सियाहत में काफी मुफीद साबित हो सकती है।
आजाद कश्मीर की तहसील धीरकोट के इलाके नीलाबट में शादी की तकरीब में बच्चों ने इलाकाई खेल तारा कैदी खेल कर खुशियों को दोबाला कर दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं वहां पर मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजाद कश्मीर की तहसील धीरकोट में खोंतल नीलाबट के मुकाम पर, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है वो इस वक्त एक शादी की तकरीब में शरीक हैं, और इस वक्त खाना खाने के बाद जो है ना ये तारा कैदी की गेम खेल रहे हैं, जो कि एक रवायती जो खेल है। और इसमें असूल यह है कि जिसके हाथ में गेंद होती है वो किसी दूसरे बच्चे को हिट करे तो वो बच्चा उसका कैदी बन जाता है। अगर कोई दूसरा गेंद जो है ना वो कैच करके वो हिट करने वाले को जो है वो हिट करे तो वो फिर पहले वाला बच्चा आजाद हो जाता है, दूसरा जो है ना वो कैदी बन जाता है। और ये खेल जो अक्सर यहाँ के इलाकाई खेलों में एक मारूफ खेल है, और यहाँ शादी ब्याह के मौके पर बच्चे जो है वो ये खेल खेल के जो है ना इससे पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ वेलकम बैक। जेलों में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। एक छत तले शहरियों के मसाइल सुने गए। मजीद बता रहे हैं शहबाज भट्ट, इस कचहरी से शहरियों को क्या फायदा हुआ है। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया ने तहसील ऑफिस में आज रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया, जहां एक छत तले डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी सब मौजूद हैं। लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और रेवेन्यू के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको सुनकर मौका पर अहकामात भी जारी किए गए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, कितने फायदे हैं इस कचहरी के? जी, सारा कुछ एक जगह पर ही हो रहा है। इधर फर्ज की सहूलत है, डोमिसाइल की सहूलत है, सारे इधर ही आके अफसर बैठे हुए हैं, पटवारी साहब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। मैं रजिस्ट्री करवाने आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक ही छत तले सारा हमारा काम किया है। छत तले तमाम मसाइल जितने भी रेवेन्यू के मुतलका हैं वो हल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो मसाइल सुन रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और मौका पर अहकामात जारी किए जा रहे हैं। फर्द का इजरा है, इंतकालात है, रजिस्ट्रियाँ हैं, और दीगर जितने भी मामलात हैं वो एक छत तले हल हो रहे हैं। शहरी हमें मुतमिन और खुश दिखाई देते हैं इस खुली कचहरी से। जी, कामुकी में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शफीक मुगल। बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील ऑफिस कामुकी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ पर साइलिन के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए अहकामात जारी किए गए। आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तहसील ऑफिस में जो है वो रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का जो है वो सिलसिला शुरू है, जिसका मकसद है कि जो महकमा माल के मतलब जिसमें पटवारी, तहसीलदार या दीगर महकमा माल का अमला जिसके मतलब अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो खुली कचहरी में आकर अपना मसला जो है वो पेश कर सके। आज जो है वो खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मिस हीरा रिजवान ने जो है वो दर्जनों लोगों के मसाइल सुनकर उनकी दरखास्तें निपटाई हैं, और मुतअद्दिद दरखास्तों के ऊपर उन्होंने मौका पर ही अहकामात जो है वो जारी किए हैं, जबकि मुतअद्दिद के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तलब कर लिया है। इस सिलसिला में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर मिस हीरा रिजवान का कहना है कि खुली कचहरी जो है वो लगाने का मकसद यही है कि जिन लोगों को रेवेन्यू के मतलब किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई मसला हो वो यहाँ आकर पेश करे और उसके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाएंगे। दुनियापुर में भी अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामी मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। मजीद बता रहे हैं चौधरी जाहिद महमूद। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मोहम्मद एतजाज अंजम ने आज अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जहाँ पर महकमा रेवेन्यू के जो है मुख्तलिफ जो है अफसरान ने, मुलाजमीन ने शिरकत की है। साइलिन ने जो है यहाँ पर अपने मसाइल जो है बयान किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने मौका पर अहकामात जारी किए हैं। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजम मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये इनिशिएटिव है कि हर महीने की पहली तारीख को वन विंडो होगा यहाँ पे, जहाँ पे तमाम तहसील के रेवेन्यू ऑफिसर्स और असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे मौजूद होते हैं। आज उसी सिलसिले में हम यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ तहसीलदार साहब हैं और अराजी कॉल सेंटर के ऑफिसर्स भी हैं। यहाँ पे हमने साइलिन की जो भी शिकायत थी या रेवेन्यू महकमा के मतलब जो भी उनके मसाइल थे उनको यहीं बैठे मौके के ऊपर हल किए हैं, या अगर उनका मौके को हल होने वाला मसला नहीं था उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट हमने कॉल की है। अवामी खिदमत खुली कचहरी का मकसद अवाम को एक ही छत के तले इंसाफ फराहम करना है, जिसका बेहतर नतीजे जो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर का ये पैगाम है कि मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इस खुली कचहरी के अलावा भी अगर किसी साल का कोई काम हो तो वो बिना झिझक मेरे दफ्तर में आकर बयान कर सकता है। जी,
शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए फालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता खुली कचहरियों में आने वाले साइलीन की शिकायत का अजाला नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों ने खुली कचहरी में आना ही छोड़ दिया है। मजीद बता रहे हैं तनवीर हुसैन साबिर। बिल्कुल शहरियों को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हदायत पर सुबह भर की तरह तहसील ऑफिस फालिया में भी अवामी शिकायत का फौरी तदारक करने के लिए माहवार खुली कचहरी लगाई गई है। शहरी वज़ीर आला पंजाब के इस इनकलाबी इक़दाम से पुरुम्मीद थे कि रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम महकमों के अफसरान एक छत तले मौजूद होने की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और साइलिन की रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द के इजरा, डोमिसाइल वगैरह के मसाइल एक जगह ही हल किए जाएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तहसील इंतजामिया के अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब के विजन की धज्जियां उड़ा दी हैं। खुली कचहरी में शहरी अपनी फरियाद लेकर इस उम्मीद से आते हैं कि इस बार उनकी दाद रसी हो जाएगी, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन शहरियों की शिकायत का अजाला न हो सका और मायूस हाल शहरी इस माहवार खुली कचहरी में आना छोड़ दिया है। अब सूरत हाल ये है कि खुली कचहरी में साइलिन से ज्यादा सरकारी अफसरान की तादाद मौजूद है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। इंतखाबात वस्त जुलाई के बाद होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वैक्सीन मुहिम तेज करने का मुतालबा किया है। आजाद कश्मीर की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गयी। इंतखाबात 20 जुलाई के बाद हो सकते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर हतमी तारीख का ऐलान कुछ रोज में करेगा। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज यकसर मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने भी इंतखाबात पर वक्त कराने की ठान ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन फरद अली मीर ने वैक्सीनेशन दुगना करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अभी 1.5 माह का अरसा बाकी है। वैक्सीन मुहिम तेज करने के साथ साथ तादाद दुगना करने से मतलूबा मकसद हासिल किया जा सकता है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के अमल में अपनी खुराक NCOC से लेके डबल करें और वैक्सीनेशन के अमल में तेजी पैदा करें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात के दौरान इजाफी पोलिंग बूथ और हिफाजती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कि पोलिंग बूथ में इजाफा किया जा रहा है ताकि थिनिंग पॉपुलेशन ज्यादा जो है स्कैटर्ड हो जाए और उसके जो कोविड की स्प्रेड के जो इम्कानात हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। आजाद कश्मीर में 33 और पाकिस्तान में 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी हतमी मराइल में दाखिल है। कोयटा में अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बैठक में समाजी कारकुनों और सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद ने कहा, अक़लियतों को आईनी हुकूक हासिल हैं जिन्हें मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। कोयटा में काम करने वाले समाजी कारकुनों और सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद की बैठक में अक़लियतों को इनके बराबर हक देने का अज़म किया गया है। अगर आप अपना आइन देखते हैं, कानून देखते हैं, तो उसके मुताबिक जो है तमाम जो सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो इक्वल है। हमें चाहिए कि हम उनको बेहतर तरीके से गाइड करें, हर फील्ड में उनको स्पेस दे दे, तो वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से अपना राइट्स भी ले लेंगे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक के हवाले से होने वाले मुज़ाकरे में पुरज़म अफराद मुल्क में एकजहती और पाकिस्तानियत के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहते हैं। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। वजीर आजम के हल्का इंतखाब दाऊद खेल में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा सका है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे खालिद अशफाक से। जी खालिद अशफाक, क्या तफसीलात हैं? हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर शुरू होने के बावजूद वजीर आजम इमरान खान के हल्का इंतखाब के अहम शहर दाऊद खेल टाउन कमेटी में अभी तक CO सब इंजीनियर ऑडिट ऑफिसर की अदम तैनाती से प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर अमल दरामद न हो सका, जबकि हालिया 3 करोड़ से नई खरीदी जाने वाली सफाई के लिए जदीद मशीनरी और गाड़ियां दफ्तर में पड़ी और खड़ी हैं। मजीद शहरियों से भी जानते हैं। काम सफाई का चल रहा है पंजाब हुकूमत का। दाऊद खेल टाउन कमेटी में मशीनरी तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मौजूद है और अच्छी खासी हालत में मौजूद है, मगर उसको चलाने के लिए इनके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अफसरान बाला मौजूद नहीं है जो चेक पे साइन करें और इनको फंड मुहैया करें। उनके मुलाजमीन बिल्कुल बहुत कम हैं और आला अफसरान भी चेक करने वाले नहीं हैं। जिस गली में जाएं, जहां भी जाएं, कूड़ा गिरकट पड़ा है और नालियां बंद हैं और सीवरेज का निजाम बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही टाउन कमेटी मुलाजमीन का कहना है कि जब तक मज़कूरा इंतजामी अफसरान की असामियां खाली हैं, हम गाड़ियों और मशीनरी को सफाई के अमूर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
चूनिया वजीर आला पंजाब की खुसूसी सफाई मुहिम के बावजूद आबादी से गुजरने वाले नाले की सफाई को नजरअंदाज कर दिया गया है। इलाके में ताफुन उठ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर तकबीर से। बिल्कुल, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी मुहिम के तहत खिदमत आपकी दहलीज के उन्वान से पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला शेखावाला गदापुरी पे। यहाँ पे किसी जमाने पे नदी हुआ करती थी जो अब गंदे नाले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये गंदे नाले में इस शहर का तमाम सीवरेज का पानी डाला जाता है, लेकिन कई सालों से इसकी सफाई नहीं की गई। हमारे जराये के मुताबिक यहाँ पर इसकी सफाई के लिए भारी बिल तो निकलवाए जाते हैं, लेकिन जो आबादी के लोग हैं वो इंतहाई मुश्किल में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनको इस गंदगी की वजह से किन किन मसाइल का सामना है। दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तकरीबन यही, तो मच्छर भी इसकी वजह से काफी ज्यादा है और भी बहुत ज्यादा गंदगी भी है इसकी वजह से। इत्थे गंद बड़ा, मच्छर रात में ना वड़दा ना कुछ भी नहीं खा, बच्चे बेचारे बीमार रह पे साडे। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि इस गंदगी की वजह से हमारा जीना दुश्वार हो चुका है और यहाँ से जो वबाई अमराज फूटने का भी खतरा है। इनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस नाले की सफाई करवाई जाए और इसका पुख्ता हल निकाला जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले नारे खिदमत अवाम की दहलीज पर धरे के धरे रह गए। चिन्योट के अंदरूनी शहर लाहौरी गेट, उस्मानाबाद, उमर रोड समेत सरगोदा रोड बाईपास पर कूड़ा करकट का ताहाल अंबार लगा है। मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया जाने वाला नारा खिदमत आपके दहलीज पर धरा का धरा रह गया है। चिन्योट शहर और गिदरनवाज समेत जो है चिन्योट के तमाम बाईपास पर जो है कूड़ा किरकट की जो सूरत हाल है वो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। चिन्योट शहर और गिरदनवा में कूड़ा किरकट जो है गली और मोहल्लों में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बाईपासों का क्या हाल है और अंदरून शहर का भी कुछ इसी तरह का रला मिला हालात हैं और लिहाजा हमारी वो दरे हैं उनके सारा ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उस पर कोई काम नहीं हो रहा और हमारी हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि वो गांव की सतह तक भी इस प्रोग्राम को फैलाएं और लोगों के मुश्किलात को हल करने में वो अपना किरदार। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह चिन्योट के शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से प्रोग्राम मुहिम का आगाज किया गया था। अवाम की दहलीज पे जो है सरकारी मशीनरी जाएगी और कूड़ा किरकट को साफ करेगी, लेकिन चिन्योट शहर और गिरदनवा में गंदगी की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। म्यूनिसिपल कमेटी शरकपुर ने पानी के माहाना बिल में 100% इजाफा कर दिया है और एक नया सीवरेज टैक्स भी लगा दिया है। शहरी परेशान हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं तहमासिफ अली। म्यूनिसिपल कमेटी शरकपुर ने पानी के बिलों में अचानक इजाफा करके एक नया टैक्स सीवरेज टैक्स के नाम पर लगा दिया है। शरकपुर में पानी के बिल 3 माह बाद सार्फिन ने जमा करवाने होते थे। अब घरेलू सार्फिन पानी के बिल 300 की बजाय 600 रुपया जमा करवाएंगे और इसके साथ 300 रुपया सीवरेज टैक्स शामिल होगा और कुल 900 रुपया घरेलू सार्फिन को जमा करवाना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि पानी के बिलों में इजाफा इंतजामिया की तरफ से एक जालमाना इकदाम है। शहरी पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं और अब नया टैक्स लगा दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले का कहना है कि बिजली की कीमतों के बाद बिल में इजाफा नागजीर हो चुका था। जानिया में खट्टा मीठा फल फालसा पककर तैयार हो चुका है। बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं शमसुल हक लांग की रिपोर्ट में। जहानिया में मौसमी गर्मा का मनपसंद फल फालसा पककर तैयार। काश्तकारों ने बागात से फल उतारना शुरू कर दिए। खवातीन भी नई फसल आने पर खुश हैं। खट्टे मीठे जायके से भरपूर फालसे खाने के लिए बच्चे बड़े सभी बेताब हैं। काश्तकार कहते हैं अब अखराजात ज्यादा और आमदनी कम हो रही है। इसके अखराजात काफी ज्यादा है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पल्ले से पड़ रहा है और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि वो इस बारे में कुछ सोचें। जहानिया में महकमा ज़राअत की जानिब से कोई रहनुमाई न होने की वजह से काश्तकार परेशान हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ